کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج پولو گراؤنڈ سری نگر میں ہائی ٹیک فلوریکلچر نرسری اینڈ سیل سینٹر کا افتتاح کیا۔ مشیر نے ہائی ٹیک نرسری تیار کرنے میں محکمہ فلوریکلچر کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اعلیٰ معیار کے پودے سستی قیمتوں پر دستیاب کرائیں۔ ہائی ٹیک نرسری کا افتتاح کرتے ہوئے بصیر احمد خان نے متعلقہ افراد کو ایک مضبوط اشتہاری مہم چلانے کی ہدایت کی تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اننت ناگ میں پٹریوں سے چھابڑی فروشوں کو ہٹانے اور ان کے باضابطہ کاری کی غرض سے اب پرانے مٹن اڈے میں نئی مارکیٹ کو قائم کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں میونسپل کونسل کے صدر ہلال احمد شاہ نے نئی مارکیٹ کا جائزہ لیا اور ریڑھی والوں سے تبادلہ خیال کیا۔ یہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کچھ دنوں میں اس کو پراپر طریقے سے بنا رہے ہیں۔ فی الحال ہم نے اس کو چالو کیا، یہ دیر رات کو بھی کھلا رہے گا۔ لائٹنگ کا ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کی جو پارکنگ کا اس کا بھی ہم خیال رکھ رہے ہیں۔ تو میری سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ آئے اس مارکیٹ میں اور عزت سے آ کے یہاں پر شاپنگ کرے، اور آپ کو بالکل ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہر ایک چیز یہاں پہ اچھے دام میں۔ میں نے خود بھی آج شاپنگ یہیں سے کی۔ لوگوں سے گزارش ہے وہ آئے اور یہاں پر بھرپور اس مارکیٹ کا فائدہ۔ سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ انجینئرز اور ڈپلوما ہولڈرز نے اپنے مطالبات کو لے کر اننت ناگ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے سرکار پر ان کا روزگار چھیننے کا الزام لگایا۔ مظاہرین نے ایل جی سے ان کے لیے مخصوص کوٹے کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ انجینئرز ڈے ہے، لیکن ہم انجینئرز کے لیے یہ بلیک ڈے ہے، چیف سیکرٹری صاحب سے پھر ہم ایک بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اس آرڈر کو جلد سے جلد واپس لیں تاکہ ہم پھر اپنے کاموں میں جڑ جائے، ہمیں مجبور نہ کرے کوئی ایسے وائلیشن کرنے کہ ہم لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھوں میں لیں۔ جن ابھیان کے تحت ضلع بارہمولہ میں میگا انکم سرٹیفکیٹ تقسیم میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کے دوران سینکڑوں استفادہ کنندگان میں انکم سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ اس سلسلے میں ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر جے نیتو نے متعدد تحصیلوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی سی نے کہا کہ خاص طور پر طلباء میں انکم سرٹیفکیٹ بہت جلد جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ مختلف اسکالرشپ اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جموں کشمیر آر ٹی آئی فاؤنڈیشن کے بانی انجینئر عرفان علی بانکا کی قیادت میں ایک وفد نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے سول سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران گورنر نے آر ٹی آئی فاؤنڈیشن کے تمام مطالبات کو سنا۔ گورنر منوج سنہا نے وفد کو یقین دلایا کہ تمام پیش کردہ مطالبات کا تجزیہ کر کے ان کے ازالے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کارروائی کی جائے گی۔ انجینئر عرفان علی بانکا نے آر ٹی آئی کارکنوں کو درپیش مشکلات اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے سے متعلق بھی ایل جی کو آگاہ کیا۔ وفد نے ایل جی کو جموں کشمیر میں وزل بلوورز پروٹیکشن ایکٹ کو نافذ کرنے اور دوسری اپیلیں اور شکایات سننے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کی اپیل کی۔ وفد نے آر ٹی آئی درخواستوں اور اپیلوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک آن لائن میکانزم قائم کرنے اور تمام سرکاری ویب سائٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر اپ ڈیٹ کرنے کی بھی اپیل کی، جس میں ہم نے ان کو ایک میمورینڈم پیش کیا۔ میمورینڈم کے ذریعے ہم نے ان کو بتا دیا کہ آر ٹی ایکٹیوسٹ کو یہاں پہ کیا پرابلمز آ رہی ہے، یہاں پہ اسٹیٹ انفارمیشن کمیشن کا ختم ہونا کس طرح سے یہاں کے ایکٹیوسٹ کو پرابلم لگ رہا ہے۔ پہلے جو جے اینڈ کے آر ٹی ایکٹ 2009 تھا، اس کے بعد یہاں پہ سینٹرل انفارمیشن ایکٹ کا آنا، مطلب اس میں ہیئرنگ میں کیسے پرابلم ہوتی ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے، کسی ایکٹیوسٹ کو ہیریس کیا جاتا ہے، وہ ہمارا کوئی نہیں سنتا ہے۔ ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہاں پہ وسل بلوورز پروٹیکشن ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، گریوینس سیلز جو بھی ہے ان کو یہاں پہ فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک ریسنٹ سروے ہوا تھا جس میں 89% جو لوگ ہیں وہ گریوینس سیلز سے سیٹسفائی ہی نہیں ہے۔ ہم نے ان کو اپرائز کر دیا کہ وہ ان پرابلمز کو یہاں پہ ریڈریس کریں۔ ویب سائٹس ہے یہاں پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی، ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 اکتوبر سے بیک ٹو ولیج مہم کے ضمن میں انتظامیہ کی جانب سے عوامی مہم جاری ہے۔ اس مہم کے تحت مختلف اعلیٰ افسران گاؤں دیہات میں جا کر لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں۔ اسی کڑی کے تحت آج ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ کشمیر قاضی سرور نے مکھاما، کانہما، ماگام کے علاوہ بڈگام کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے عوامی وفود سے ملاقات کی اور ان کے درپیش مسائل و مشکلات سنے۔
जो भी ग्रीवेंसेस होंगे लोगों के, उसमें देखेंगे कि क्या ग्रीवेंस है, उनका रिड्रेसल होना चाहिए, बाज़ाब्ता उनका रिड्रेसल भी होगा। दूसरा है कि जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ होंगे, तरक्याती जो होगी अवामी देही तरक्याती मुहिम, वो इसमें आ जाएंगे। जो जितने भी प्लान्स होंगे, क्या वो चल रहे हैं, वो काम चल रहे हैं, या और जो डिमांड है लोगों की, वो प्लान में रिफ्लेक्ट करना है, आइंदा प्लान में रिफ्लेक्ट करना है। या जो गवर्नमेंट ने हमको वागुजार किए हैं 10 लाख, उसमें से 9,80,000 कामों के लिए, कम से कम 2 अहम कामों के लिए जो पंचायत में उठाने होंगे, वो शुरू करवाने हो और वो इन 20 दिनों तक ख़त्म भी करवाने हैं। और तीसरा है हमारा जो है कि आवाम के लिए जो भी कुछ होगा, उनका सपोज उनके राइट्स के, उनके हुकूक के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, या कुछ RBA सर्टिफिकेट होगी, लाइसेंस होगी, स्कॉलरशिप का इशू होगा, वो इसमें उनको वो रिड्रेस करना है। 34 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से ज़िला शोपियां के दूरदराज देहातों में तलबा में तालीमी मवाद, स्पोर्ट्स किट्स और एनर्जी बूस्टर अशिया तकसीम की गई। मंत्री बुक कैंप के रानीपुरा, खासीपुरा, टिकीपुरा और दीगर देहातों में 34 राष्ट्रीय राइफल्स के जरिए सैकड़ों स्कूल बैग और दीगर सामान तकसीम किए गए। फौज ने कुछ बैग वगैरह और कुछ मतलब एनर्जेटिक फूड्स डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने किए हैं, जिसमें बच्चे भी काफ़ी इनकरेज हो गए और उन्होंने बच्चों को इनकरेज किया है कि आगे उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सलाह मशवरे दिए हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे प्रोग्राम अगर करते रहेंगे, आगे मतलब कंटिन्यू रहेंगे, तो उससे बच्चों का भलाई हो जाएगा और फ्यूचर ठीक रहेगा। आरआर की तरफ से यहाँ आज स्कूल खुल रहा है। स्कूल की बच्चों ने बहुत खुशी मनाई कि बच्चों को बैग वगैरह दे दिया और गुजर बकर वालों को भी आटा वगैरह दे दिया और बड़े बच्चों को भी नेट और वॉलीबॉल भी दे दिया है। उससे बहुत अच्छा हुआ है कि वो इससे बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को भी। तो बहुत अच्छा कदम है। अगर बार बार ये कदम उठेगा तो फिर बच्चे भी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। कस्बा पामपुर में कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर महकमे सेहत ने तमाम सरकारी दफातर, सोमो स्टैंड्स और दीगर जगहों पर मास सैंपलिंग शुरू की है। एक दिन में 500 के करीब लोगों के टेस्ट और सैंपल लिए जा रहे हैं। ब्लॉक मेडिकल अफसर पामपुर ने लोगों से ताउन करने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। डिजीज बर्डन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए हमने अब एक जो हमारा रैपिड टेस्ट आया है, जिसका रिजल्ट हमें उसी टाइम पता चल जाता है, उस सिलसिले में हमने एक मास सैंपलिंग की मुहिम छेड़ी है। जहां पर भी कोई भी गैदरिंग हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, कोई चाहे सोमो अड्डा हो, या कोई भी जहां पर भी कहीं भी गैदरिंग होती है, वहां पर हमारी टीम जाके एक मास सैंपलिंग करके, ताकि हमें पता चले कि कम्युनिटी में डिजीज बर्डन कितना है। बारामूला किरेरी के कलंतर पाइन में पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। लोगों ने LG इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से अपील की कि उन्हें पीने और ज़रई ज़मीन की आपाशी के लिए पानी फराहम किया जाए। सैलाब ने हमारी 2 कौलें हैं, शाहकुल और दूसरी को गाम कौल कहते हैं, दोनों तबाह हो गई। हमारे इलाके से निस्फ कश्मीर को पानी जाता है। नाली निगली की है टेल हेड पर हम इस वक्त सिचुएटेड, लेकिन बदकिस्मती से हमें वहाँ भी पानी से महरूम। कलांतरा पाइन के लिए अलहदा लाइन एक दीजिए ताकि हमें पानी की शिकायत न रहे। अशन चारवाइन खतर आब, अशन तेज चन खतर आब, अशन हेकान न सब्जी कर न दा फसल तो गो खत्म, तमाम चीज गए खत्म। इस्तदा कर अगर गवर्नमेंट से कुन जाए तेल क्या सोन ये दात ये मसल सोन हाल। ज़ंस्कार सब डिवीज़न के अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC करगिल फेरोज़ अहमद के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सियाहत और ज़ंस्कार उमूर इंजीनियर फुनसुक ताशी और एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए ज़राअत व सेहत मोहम्मद अली चंदन ने पीर के रोज़ आवाम से बातचीत की। उन्होंने रंगदम और स्टोदा इलाकों के मुतादिद देहात में वफूद की शिकायत और मुतालबात सुने। करगिल के काउंसलर तेसुरु और करगिल के तलबा एजुकेशन मूवमेंट के जरिए आज लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर से मुलाकात की। सईद अब्बास रिजवी काउंसलर तेसुरु LHDC करगिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से दरख्वास्त की कि वो करगिल के सबको डिवीज़न का दौरा करें ताकि उनकी मुश्किलात, तरक्याती ज़रूरियात और सलाहियतों के बारे में जान सकें। सेमुक के नुमाइंदों ने एक मेमोरेंडम भी पेश किया।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की हैसियत से खुद को जाहिर करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस एहलकारों ने बताया कि एक नौजवान नीरज कुमार के नाम से शिनाख्त किया गया है, जो जिला हेडक्वार्टर डोडा से 8 किलोमीटर दूर बदरून गांव का रिहायशी है। पिछले कुछ हफ्तों से जाली एसआई के तौर पर काम कर रहा था और देही इलाकों में चेक पोस्ट लगा रहा था। लोगों ने भी इस पर यकीन करना शुरू कर दिया, यहाँ के तक कि उसने खास इलाकों में ट्रैफिक का इंतजाम किया। तफ्तीश के दौरान उसने बताया कि वो हमेशा पुलिस अफसर बनना चाहता था, यही वजह है कि वो पुलिस एसआई की नकल करने पर मजबूर हो गया। पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वेलिसा में कोरोना पॉजिटिव केसेस में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। गंदू वेलिसा के 2 इलाकों यानी चिंगा वेलिसा को रेड जोन करार दिया गया। डीसी भी किसी भी सूरत हाल पर बहुत करीब से निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस इलाके का बाकायदा दौरा किया। आप क्यों नहीं मास्क पहन रहे? नहीं मतलब प्रॉब्लम हो रही है, कोई सांस में प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम तो पहनते हो ऐसे आप? लोग जो है एसओपीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। टोटल जो है एसओपीज का धज्जियां उड़ रही हैं और खास करके जो मजहबी त्यौहार है या जब किसी की डेथ होती है जनाजे पे या किसी और जहाँ जाते हैं ताजियत पे, वहाँ भी नहीं। मैंने अक्सर बाजार में ये लोगों को बगैर मास्क पहने हुए देखता हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरे ढंग से ख्याल रखें। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो इसका हम बहुत बड़ा लॉस जो है वो बेयर कर रहे हैं। गुंदो सब डिवीजन में अभी तक 3 डेथ हो गई हैं कोरोना वायरस से। हमने यहाँ पे 5000 टेस्ट जो हैं कोविड के किए हैं। कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है बीमारी का, बीमारी फैल चुकी है अच्छी तरह से अंदर। गुंदो में भी केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, थोड़ा ज़्यादा रिपोर्टेड हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि दो वहाँ पे डेथ्स भी हुई। वहाँ पे हमने पूरा कंटेन किया हुआ है और वहाँ पे हम एक्सटेंसिव ये टेस्टिंग भी कर रहे हैं। गुंदो विलेसा में पिछले 3 दिनों के दौरान 3 अमवात होने से यहाँ के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। न ही यहाँ इंतजामिया की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, न ही मास्क पहने जा रहे हैं। इसलिए इंतजामिया की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि ये चेन जो है ये ब्रेक हो सके। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उनके मंडी तहसील के एलओसी के करीब वाक़े गगरियान गांव के 4 खानदानों में ऐसे बच्चे हैं जो सबसे मुख्तलिफ नज़र आते हैं, लेकिन इन बच्चों को सूरज की रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। हालांकि इन बच्चों को माजूर मानते हुए महकमा समाजी फलाह ने वजीफ़ा शुरू किया है, लेकिन इन बच्चों के वालिदैन इंतज़ामिया से बच्चों की तालीम का इंतज़ाम समेत दीगर सहूलियात का भी मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब आई स्पेशलिस्ट का कहना है कि इन बच्चों की अच्छी तरह जाँच के बाद ही बीमारी की असल वजह सामने आ सकती है। मेरे 2 बच्चे हैं सर, उन्हें आँखों में रोशनी कम है, चलने में थोड़ी दिक्कत आती है और उनको गवर्नमेंट ने पेंसिल लगाई है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और इससे आगे भी हमारे कुछ मदद की जाए, हम गरीब लोग के बच्चों को भी हमें बहुत दिक्कत है, इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, चल नहीं सकते। बच्चे को देखने में प्रॉब्लम थी तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको पेंशन भी दी, तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसलिए सोचते हैं कि गवर्नमेंट बच्चों को कोई और मदद भी करे। ये हो सकता है न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को डाइट में कोई डेफिशिएंसी है विटामिन की, जैसे इम्यूनाइजेशन में आता है कि हम विटामिन की डोज देते हैं बच्चों को, तो वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी अच्छी खुराक खा रहा है। अगर उसको विटामिन की डेफिशिएंसी है, स्पेशली विटामिन ए की, तो उससे उसको प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगी। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।